Hello everyone. Am I audible? Can someone reply? Am I audible? Hi, lovely audience. So, इतना अच्छा लगता है when you do something good for the society, you want to educate and people want to participate. So, ये हमें और ज़्यादा enthusiasm देता है कि we should conduct a lot more sessions like this. Hi Rakhi. Okay, so sir is already here with us. Let me send him the request. Sir, I'm sending. Yes, friends, today we are very much on time. And we have a wonderful person here with us. Hi, welcome. Hello. Okay, so can you hear me, Dr. Yes, Santosh? yes, yes. I can. I can. Lovely. So, friends, quickly, let me just first introduce sir. So, we have today with us Dr. Santosh Yadav. He is a practicing pediatrician as well as parenting, educator. He is MD Pediatrics practicing at Nirmal Hospital. He is also a neonatologist as well as GND expert. Kids nutrition he has done from Boston. So his lovely, credentials and lovely accomplishments. Welcome to Fit Mantra, and we Thank you. actually extend our gratitude for spending time to educate our followers. So, Thank you. Dr. Thank you Santosh, for inviting on this page. thank you. So I'll just give an overview. What we do every Friday night is we Okay. try to educate the mass about different speciality, different topics. सो Okay. हियर वी जस्ट टॉक जो नॉर्मली क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स आके पूछते हैं, पब्लिक आके पूछती है, एंड वी माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर देम. सो Okay. वी बीन डूइंग आवर होमवर्क सिंस लॉन्ग कि हमें ये सारी चीजों पे कुछ ना कुछ करना है. सो दिस इज फॉर द सोसाइटी, इज लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी. Okay. Whatever. Right. Very good. Very good approach. When यस, I एंड इट do live sessions, इज हमने यही सीखा कि एजुकेशन इज मस्ट. must. Yes. 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 The parenting tip सूरत का purpose ही ये है educate to eradicate. If you want to eradicate something, you will have to educate them. Right. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और वो कैसा है ना, हमारे दादा पुश्तौनी से जो कहावतें चल रही है, इवन द मदर्स टुडे यूज द सेम टिप्स एंड और इसी वजह से काफी लोग सफर भी करते हैं. सो Yes. वी वांट द राइट इंफॉर्मेशन गोइंग टू द मास. Yes. True. True. So let's start today with the digging of all the knowledge that you carry. Right. So Yes. मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आजकल ऐसा हो गया है, जैसे आई पर्सनली सी इन माई फैमिलीज ऑल्सो द मदर्स दे डिलीवर थ्रू सिजेरियन, दे हैव द माइंडसेट कि हम ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएंगे, एंड दे डोंट पुट दैट एफर्ट ऑल्सो इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड फाइनली लैंड द चाइल्ड ऑन फॉर्मूला फीड. सो ऑन दिस आई वांट योर टिप्पणी. See, I always says there are three types of moms now. First, uh, normal moms, or you can say ki mom who wants to breastfeed, they don't think much. Once the baby is delivered, they breastfeed their baby and they happily breastfeed their baby without any issues. Then there is a millennial mom who wants to breastfeed their baby. Antenatally, they will do so much of research, googling ये वो. They'll take so much stress कि मुझे breastfeed करना है, breastfeed करना है, breastfeed करना है. एंड देन जब CS होता है या नॉर्मल डिलीवरी होता है और जब 1-2 दिन या पहले 2-3 दिन मिल्क नहीं आता है, दे आर सो मच स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड कि मुझे मिल्क क्यों नहीं आ रहा है. एंड एट द एंड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, दे आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड देयर बेबी. एंड देन दिस साइकिल गोज, स्ट्रेस, नो मिल्क, अगेन स्ट्रेस, नो मिल्क, स्ट्रेस, नो मिल्क. So ये राइट. cycle घूमता रहता है and they are not able to breastfeed. And at the end they goes in postpartum blues and then postpartum depression and all. Third, they don't want to breastfeed. They will Okay. not directly say कि we don't, but the number of the percentage of this category is very less. I think 1 or 2% out of 100. But there are parents who, okay, doctor, can we bottle feed our baby? You know, why bottle feed? So that in future when we are out or we are working, so my baby can breastfeed this. So my baby will have bottle feed.
बहुत कम परसेंटेज है, बट यस वी हैव सीन केसेस जहाँ पे वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू ब्रेस्ट फीड आवर बेबी. बट जो द थिंग्स वी आर वरीड ऑफ इज ऑफ कैटेगरी 2, जिसमें जो द मिलेनियन मॉम्स दे थिंक सो मच एंड टेक सो मच स्ट्रेस, गूगल एवरीथिंग, एंड एट द एंड they end up in not breastfeeding because of stress. Right. I just want to at the end of this question, I just want to add one point for all the moms who are antenatal or who have just delivered. Do not take stress, because if you take stress you will not be able to produce milk, because oxytocin release होने के लिए you need to be happy. Oxytocin is a happy hormone. अगर आप खुश रहेंगे तो ही oxytocin release होगा और तभी milk बनेगा. राइट, परफेक्टली सेड. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खुश रहना चाहिए. Sorry, I'll keep talking. I think I'll not give you chance. I love that because I'm a very talkative person, so don't worry about it. Just go ahead. And last point I'll add, as you said, ki why more in LSCS or cesarean compared to normal delivery. See, normal delivery is a physiological process. That is a stress-induced process. That is a physiological process. तो उसमें the hormones which should act या the hormones which should release वो अच्छी तरह रिलीज होते हैं, and तो वो that is a physiological process, तो उससे मिल्क अच्छी तरह होता है. कंपेयर टू LSCS या सिजेरियन, उसमें क्या होता है कि इट्स अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस. आपको ऑपरेशन किया जाता है, उस टाइम पे आपको पेन नहीं होता है. जब ऑपरेशन से करते हैं तो 24 to 48 आवर्स यू कैन नॉट मूव, आप बॉडी मूव नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते. तो उस फेज में ना यू आर इन स्ट्रेस, यू आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, राइट. एंड उसके बाद बिकॉज ऑफ you can say कि anesthesia या because of low tone there is a pain, फिर आप नहीं कर सकते हैं. and 4-5 days जो critical phase रहता है जिसमें आप breastfeed नहीं करते, तो in future फिर वो breastfeed होता ही नहीं. and plus then फिर point आता है कि डॉक्टर संतोष जिसने भी स्पाइनल लिया होता है वो ब्रेस्टफीड नहीं करता है, उसको बैक पेन होता है, एंड फिर वो मिल्क चालू हो जाता है. एंड देन काफी वी हैव सीन कि नॉर्मल मदर्स ब्रेस्टफीड वेरी वेल कंपेयर टू ब्रेस्ट LSCS वाला. Right. Before I go on and move on, friends, जिनके पास कोई भी questions हैं, keep putting in the chat box. We will surely take all the questions क्योंकि already questions start हो चुके हैं. So I wanted to know, तो किस condition में you will suggest कि formula feed देना चाहिए? See, formula feed जब होता है, स्टार्टिंग में 24 आवर्स से 48 आवर्स प्राइमरी मॉम्स जो होती हैं या जिसने LSCS किया था उसको मिल्क बहुत ज्यादा नहीं आता है. अब उसको आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, एंड वो मिल्क बहुत कम रहता है. ठीक है, तो उस टाइम में भी एडवाइस की पहले 24 to 48 आवर्स में वी एडवाइस की वी कैन गिव फॉर्मूला मिल्क पहला. देन उसके बाद क्या होता है, कभी कभी प्रीटर्म बेबीज होते हैं उनमें मिल्क नहीं आता है, उसमें भी एडवाइस की वी कैन गिव फॉर्मूला. थर्ड, कभी कभी क्या होता है कि मदर को मिल्क ही नहीं आता है, ये लैच ही नहीं कर पाता है बेबी, या मदर को कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन है या फिर बेबी NICU में रह गया या मदर को कोई स्ट्रेस है, उस टाइम पे अगर मिल्क या लैच अच्छी तरह होता है तो वी एडवाइस की वी कैन गिव फॉर्मूला. बट आर ऑलवेज फोकस इज कि ब्रेस्टफीड लैक्टेशन अच्छी तरह लैक्टेट कर दे, अच्छी तरह लैच कर दे, अच्छी तरह पोजीशन हो, बर्पिंग वो हो जाए. अगर उसके बाद भी नहीं होता देन वी से कि वी कैन गिव फॉर्मूला फीड. Right. So colostrum is one thing which is a myth. आज भी even very well educated family also try to avoid, and वो बोलते हैं येलो मिल्क है तो फेंक देना चाहिए. Which is wrong. Colostrum is your first vaccination. जितना एंटीबॉडीज या फिर जितना इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसमें रहता है वो किसी में भी नहीं रहता है, इसीलिए डॉक्टर सेज कि दैट इज द बेस्ट या फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर योर बेबी, तो वो तो देना ही देना है. Yes, even I stress on that. And you rightly said कि जिनको epidurals होते हैं they keep it for the lifelong, because we even get जो weight loss या other problems के लिए भी आते हैं ना, they always have that in mind कि जब मेरा cesarean हुआ, मुझे anesthesia दिया था, तो मैम तब से मेरा कमर खत्म हो गया. Like I have taken epidural twice and I'm very fit, thankfully. So I believe थोड़ा mindset भी बहुत important है. Indians have certain kind of mindset कि firstly तो pregnancy itself is a बीमारी, so you have to rest for 9 months. Then delivery हो गई मतलब तो यही हो गया कि 40 days you are not going to get up from the bed and your mother or your helpers will be taking care of your child and everything. Yes. I also see कि इस वजह से वो attachment
जो चाइल्ड के साथ मदर का होना चाहिए वो उस लेवल तक पहुंचता ही नहीं है. दिस इज व्हाई द मदर and the child relationship in India is on a very formal level than what we see on a friendly level in our Western countries. Is that true or it is just my myth? नहीं, I think not very true. See what happens. See, with the baby, a mother is born, right? I'll explain you in my language what I explain to my parents. होता क्या है, ये जो आपने रिलेशन के बीच में बोला है, विद डिफरेंट क्लासेस वी सी डिफरेंट सिचुएशंस. नॉर्मली क्या होता है, पहले 9 महीने जब बच्चा मम्मी के पेट में रहता है, राइट, तो एवरीबडी पैम्पर्स मॉम. सासू माँ हो गई, मम्मी हो गई, डैडी हो गए, फादर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सब, बिकॉज एट द एंड दे आर पैम्परिंग द बेबी, राइट. Yeah. एंड इवन मॉम को भी क्रेविंग हो रहा है, या मॉम के भी हार्मोन्स जो हैं उस हिसाब से, बिकॉज एंड शी इज गेटिंग हर टाइम, या मी टाइम जो कहते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से मिलता है. आराम, रेस्ट, सब कुछ रहता है. सडनली आफ्टर द डिलीवरी एक टर्बुलेंस फेज आता है, ठीक है. वो टर्बुलेंस फेज किसी में 15 डेज, देयर आर सो मेनी मॉम ब्लॉगर्स जो उनका तो मुझे दिखता ही नहीं कि दे हैव एनी टर्बुलेंस फेज, या किसी को 40 डेज, किसी को 3 मंथ्स रहता है. अब इसमें क्या रहता है, देयर इज अ हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अ मॉम, बट इट इज वेरी कॉस्टली. क्या कॉस्ट? Okay. हस्बैंड डोंट हैव टाइम, ठीक है. दादी, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है. नानी, बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध पिलाओ. फादर, ग्रैंडफादर, पूरे फैमिली मेंबर, पूरा अटेंशन, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द मदर टू द बेबी. एवरीबडी फॉरगेट कि अभी तक देयर वाज ओनली अ लेडी हु डिलीवर्ड, नाउ देयर इज अ मदर, एंड उसके हार्मोन्स अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं. देयर इज अ टर्बुलेंस इन हार्मोन्स लेवल्स. तो सी उसके दिमाग में क्या आता है, नोबडी इज केयरिंग फॉर मी. सडनली व्हाट हैपेंड, ठीक है, हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है, सास ध्यान नहीं दे रही है, मम्मा ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं, तो एक वो इशू उनको चलता रहता है. उसके साथ क्या होता है, प्लस एक वो गिल्ट आने लगता है. नॉट इन ऑल मॉम्स बट सम जो अपने बेबी को समझ नहीं पाते हैं, उनमें क्या होता है, बेबी इज क्राइंग, फीड कराओ, बेबी इज क्राइंग, फीड कराओ. आई हैव सीन सो मेनी केसेस. डॉक्टर, आई एम नॉट अ गुड मॉम, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई बेबी. मेरा बेबी तो रोता ही रहता है, एंड वो घर छोड़ के भाग गए, ठीक है. दैट इज पोस्टमार्टम डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स इश्यूज, राइट. सो माई एडवाइस जो रहता है पेरेंट्स को, या फादर को, या ग्रैंड मदर को, कि ये पहले जो 40 डेज जो फंडा है, दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज 40 डेज में बेबी और प्लस मॉम दोनों का इम्यूनिटी इज वीक, द बॉडी इज वीक, प्लस मम्मी का मेंटल जो बैलेंस है वो नहीं है. तो इस फेज में हमको बच्चे के साथ मम्मा का भी ध्यान रखना है. और अगर हम उस फेज में मम्मा को मोटिवेट कर सके तो कोई इशू होता नहीं. बट अगर हमने मोटिवेट नहीं किया, देन ये पोस्टमार्टम ब्लूज, या फिर मैं ध्यान नहीं रख पाती हूँ, या परसिस्टेंट विजिट्स. देयर आर सो मेनी मॉम्स, Depression. yes, depression, at the end depression. There are so many moms who comes only on vaccination, and there are so many moms other side, they every third day, डॉक्टर बच्चे को ये हो रहा है, बच्चे को ये हो रहा है, बच्चे को ये हो रहा है, बच्चे को, बिकॉज वो कम्युनिकेशन सेट इन नहीं हुआ, ठीक है. सो एंड अब इसमें क्लास, इसमें देयर आर 3 क्लास. एक क्लास है अपर मिडिल, या फिर आप कहेंगे एक है लिटरेट हु आर वेल वर्स्ड, उनको पता है एंड उन्होंने कम्युनिकेशन सेट कर दिया. एक है एक्सट्रीम लोअर, जिनके पास देयर इज नो ऑप्शन बट वो कर लेते हैं. जो मिडिल क्लास जो आ गया है, एक पर्टिकुलर बैच है जो हु आर दे, आई कॉल देम गूगल मॉम्स, जो हर चीज के लिए गूगल करते हैं. वो मॉम्स बहुत परेशान होती है, वो मॉम्स में बहुत इश्यूज ये हमने देखा है. Yes, and वो थोड़ा self medication पे भी आ जाता है, they know everything. Yes. So we also see here a lot of people carrying Googleitis. Googleitis. Yes, so ये होता है. So मुझे एक और चीज बताओ डॉक्टर संतोष, a lot of babies are we see not very much at peace post birth. तो उनको वो सूद कराने के लिए क्या करना चाहिए? Can you please repeat the question? So we see a lot of baby, crying babies. So we see them not at peace at all. पता नहीं उनको क्या होता रहता, बिकॉज दे डोंट कम्युनिकेट. वी आर न्यू मदर्स, तो हमें नहीं पता रहता है क्या होता है. साथ में जो हमारे साथ हॉस्पिटल रहता है वो, अरे इसको क्या हो रहा है, फीड ही कर लो, अरे इसको क्या हो रहा है, हाथ में ले लो. सो इन दैट
case, how do you soothe, or what do you expect a mother should be doing to soothe a baby? See, crying is a language for my baby, right? भूख लगी है रो, मम्मा चाहिए रो, पॉटी सुसु आई है रो, कहीं दुख रहा है रो, गैस हो गया है रो, ठीक है? एंड जैसे ही निप्पल आ जाए वैसे चुप हो जाओ, बिकॉज गॉड हैज सेड देम कि दिस निप्पल इज नॉट ओनली फॉर योर फीट, बट आपको अगर कुछ हो रहा है, जैसे निप्पल आएगा यू विल बी इन ट्रांस एंड यू विल बी हैप्पी, ठीक है? तो क्राइंग इज अ लैंग्वेज. You will have to understand what is the reason. Whether your baby is sleepy, or your baby is hungry, or your baby is going to pee, poop, or pass gas. And with different scenario या different month, your baby will cry. जैसे पहले 3 months में your baby will cry mostly for hungerness या gas issue या potty सुसु के लिए. 3 महीने के बाद there will be sleep depression, sleep regression. उसमें क्या होता है, योर बेबी विल क्राई बिकॉज ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू. आ करता रहेगा, पॉटी करते वक्त रोएगा. फिर 6 महीने पे टीथिंग प्रोसेस चालू होता है, उसमें रोएगा. फिर 9-10 मंथ में एक अलग सा उनमें वो आ जाता है. दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, दे वांट टू वॉक, दे वांट टू टॉक, बट दे आर नॉट एबल टू, दे विल स्टार्ट क्राइंग. देन उसके बाद नाइट टेरर्स आते हैं. उसके बाद फिर टीथिंग प्रोसेस चालू होता है. तो हर महीने में देयर आर डिफरेंट रीजंस. But if you'll try to find it out, or if your communication is very strong with your baby, तो issue नहीं आता है. But most common cry जो होता है that is hunger. वो भी अगर आपने बेबी के साइंस समझ लिए, जैसे वो पहले से लिप स्मैकिंग कर रहा है या हाथ मुंह में डाल रहा है, अगर आप वो समझ लेते हैं और उसमें ही आपने बेबी को फीड करा दिया, तो इशू नहीं होता. Yes. पेसिफायर्स क्या होते हैं जो आप कर सकते हैं? पहले 3 months तो व्हाट वी से कि ब्रेस्ट फीड ही देना है, और ज्यादा देना नहीं है. इफ यू आर वर्किंग मॉम या आप बहुत बिजी रहते हैं, तो उस टाइम पे देयर आर पेसिफायर्स इन द मार्केट यू कैन गिव. या स्टार्टिंग में आता है जो आर्टिफिशियल निप्पल आ गया, वो आपने दे दिया. एंड उसके बाद फिर बाद में टीथर्स आते हैं, वो आपने दे दिए. बट मेक श्योर कि वो टीथर्स गिर जाए या वो पेसिफायर्स नीचे गिर जाए, फिर उसके बाद आप बेबी के मुंह में नहीं डालें, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. राइट. So, यहाँ पे जब हमने ये बात की, तो I would like to take up on the sterilization. Like हमारे यहाँ sterilization की, to be very honest, maybe the upper class now does it because sterilizers are available. I have done. I have very religiously done for that 1.5 year that I used anything. Though my babies are, exclusively breastfeeding babies. पर जो भी छोटी सी चम्मच भी यूज किया, आई हैव थॉरली स्टेरिलाइज्ड. बट आई अंडरस्टैंड इंडिया में वो चीज का ट्रेंड नहीं है, या फिर लोग स्टेरिलाइजर खरीद तो लेते बिकॉज इट इज अवेलेबल, बट दे डोंट यूज इट मच. दे फील एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है. और मैंने यहाँ तक भी देखा है, लाइक व्हेन पीपल कम इन द क्लिनिक ऑल्सो, उनके बच्चे के मुंह में वो लटका रहा है रहता है, फिर वो रख भी देते हैं खुला, देन वही लेते हैं. राइट. हाँ, एग्जैक्टली. सो यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन पे कितना इम्पोर्टेंस होना चाहिए हर घर में? सी, अभी इसमें भी देखेंगे अराउंड 60-70% दे स्टेरिलाइज देयर बेबीज वेरी वेल एंड इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं. बट 30% कैटेगरीज वाले जो पेशेंट्स हैं, दे मतलब उसमें भी इन्फेक्शंस हैं वो होते हैं. अब उसमें क्या होता है, सी इफ यू बॉटल, सपोज यू आर बॉटल फीडिंग योर बेबी, यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी, राइट? एंड आप बोले डॉक्टर आई एम स्टेरिलाइजिंग द बॉटल एवरी टाइम, ठीक है? बट रात को 2 बजे क्या होगा व्हेन यू आर इन स्लीप, ठीक है? या रात को 4 बजे क्या होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट. अगर वो बॉटल ऐसे भी गिर गया, फिर आपने बेबी ने पिया, तो वो भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो स्टेरिलाइज के लिए आता है, कि हम घसारा या फिर वो ग्राइप वाटर जो देते हैं, या जो वीनिंग के लिए जो खाना खिलाते हैं, उसमें हम लोग सेम बर्तन यूज कर लेते हैं जो वाटी चम्मच जो हमने यूज किया होता है, ठीक है? तो कुछ पर्टिकुलर चीज है जो स्टेरिलाइज करनी चाहिए बट हम कर नहीं पाते. एक बॉटल पे हम एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, बट स्पून हो गया या वाटी हो गया या चम्मच हो गया, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं. आई विल से कि 80-90% पेरेंट्स डू दिस. ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं. मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट लेके आना है कि जब आप परसिस्टेंटली इसको यूज कर रहे होते हो, तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना या फर्स्ट बेबी में यू विल डू वेरी नाइसली, बट सेकेंड बेबी में यू बिकम थोड़ा सा लेजी, या यू आर वेल एक्सपर्ट कि अगर ये होगा तो आई गिव दिस. नहीं, थोड़ा सा बिजनेस में बढ़ जाता है ना, 2 बच्चे हो जाते हैं. यस, वहां पे आपका गार्ड डाउन हो जाता है. अदरवाइज
the parents are good with the sterilization till now. Okay. चलो, nice to hear because it's been like my 14 years, so तब तो था ही नहीं. I was the only हाँ. one who was carrying everything everywhere. So I'm happy to hear this from you. अच्छा, ये sterilization की कितने techniques अभी available easily and See, anyone can. सी स्टरलाइजेशन का जो व्हाट वी से कि अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो घर पे गर्म पानी को उबले उसमें आप बॉटल या फिर आपके वाटी स्पून आप रखें, उसको 5 मिनट्स रखें, वो उबल जाए, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं. अदरवाइज देयर आर सो मेनी मशीन्स अवेलेबल. माय एंड बेबी या कोई भी वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पे मशीन्स अवेलेबल जहाँ पे आप स्टरलाइजेशन वो मंगा सकते हैं. बट प्रैक्टिकली मैंने मेरे बेबी के लिए जो भी यूज किया है मैंने घर पे यूज किया है. आई डिड नॉट एड एनी कॉस्ट फॉर दिस स्टरलाइजेशन के लिए. एंड फॉर फर्स्ट 6 मंथ अगर आप ब्रेस्ट फीड देते हैं या 1-2 बार ही बॉटल फीड देते हैं तो आपको ज्यादा ये इशू नहीं आएगा. हाँ, बट स्टरलाइजेशन शुड बी देयर इन योर माइंड. If it is in your mind, you will definitely going to follow this. Because True. And there are tablets also available for cold sterilization. Yes, especially yes. when you're traveling or everything. Yes, you being mom, you will be the better one to answer on this. I just want मैंने to यूज किया है एक्चुअली. उस टाइम पे इंडिया में मिलती भी नहीं थी. आई यूज्ड टू आस्क माय सिस्टर टू गेट मी दोस टैबलेट्स बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रैवल. तो इट इज कॉल्ड एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन. आपको सिर्फ पानी में डिस्पर्स करनी है. soak the utensils or the bottles that you're using, keep them overnight, और जब आपको यूज करना है just आपको पानी निकाल दीजिए and just use it. So that is again, now it is very much easily available even on the medical stores. So anybody here want to try that? But then what you said is very cost effective. अगर उसको अच्छे से करते हैं गर्म पानी, it just take few minutes. So you do not need बड़े sterilizers or the micro sterilizer. There are a lot of things available today. And basic मुझे याद आई, which was not in my list, but then I really want to ask, breastfeeding pumps. Yes. You know, जैसे आपने कहा, lot of working women try कि भाई bottle feed हम कर दें, top feed रखें, because of obviously management या फिर जो भी है कोई और रखने वाला है everything. Why don't we promote the express breastfeed that can be preserved for 48 hours and even more if please? उसके लिए हम एजुकेशन क्यों नहीं देते यहाँ पे? It is very easy things. बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी मिलेगा, मदर को भी ईज रहेगा. इवन दो शी इज वर्किंग, लाइक आई हैव बीन अ वर्किंग मदर, माय किड्स आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड. बच्चे थोड़ा सा एफर्ट तो ऑफकोर्स लगाते हैं, बट वही तो एक मजा है टू बी अ मदर. So I believe why don't we मतलब वो स्प्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं हम, rather than giving them the option of easy के फॉर्मूला फीड बनाओ. नहीं, सी पहले एक स्टरलाइजेशन में आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि द बेस्ट एंड द इफेक्टिव वे ऑफ स्टरलाइजेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टरलाइज इज योर हैंड. When you breastfeed your baby, when you feed your baby, when you're going to sterilize your baby's bottle or वाटी चम्मच कुछ भी, first wash your hand. That is the best thing or that is the most important thing in sterilization. ठीक है. अब जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा कि आप करते हैं कि नहीं. सी वी डू काउंसिल. ठीक है. when the mother is going after 3 months 4 months जब वो जाती है तो what we advise कि better have a gap or a break of 1 to 2 hours जहाँ पे you can, if it is possible, you can come and breastfeed your baby and go. ठीक है. and if they are not able to, then we say कि express करो milk and you can store it for, जैसे आपने कहा 48 hours also. तो if you are going to store it for at room air temperature तो भी 4 to 6 hours मिल्क को कुछ नहीं होता है, वो एकदम अच्छा रहता है. अगर आप फ्रिज में लेस देन 24 डिग्री पे करते हैं तो वो 24 लेस देन 8 डिग्री पे करते हैं तो वो 24 आवर्स तक रहता है. और अगर आप उसको फ्रीज करके बर्फ बना देते हैं तो वो 2-3 महीने तक अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है. तो मदर्स डू कम व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एंड उसमें व्हाट वी एडवाइस कि बेटर कि आप 2 या 3 घंटे के बाद एक घर पे आने का रखें. और अगर नहीं करते तो आप वहां पे यू कैन एक्सप्रेस योर मिल्क ओवर देयर एंड एक्सप्रेस करके यू कैन कीप इन. अगर वहां पे फ्रिज है या फिर आइस बैग्स या आइस वो आते हैं अपने क्या कहते हैं जिसमें वैक्सीन बॉक्स रहते हैं, उसमें रख के आप लेके आ सकते हैं. एंड दे कैन नो, देयर आर मेनी मॉम्स हु आर डूइंग दिस. So I don't think there is very issue in this, and many moms who start going to job, around 50-50 is the ratio I think. And 50% में the in-laws or someone tell them to start bottle feed because it will be easy for the baby.
frankly Exactly, speaking. that is what my problem is. Like I see ease ऐसी चीज है ना कि हम जल्दी कैच करते हैं. जल्दी Efforts कैसे. ऐसी चीज है कि हम 2 बार सोचते हैं. Why Yes, yes, don't but we stress on efforts? Because it is going to reap them some fruits in the future. Their baby is more healthy because they're on breastfeed. So वो difference in a top feed और breastfeed हमेशा रहने वाली है according to me. yes, see, अब सबसे important difference तो रह गया ना, because there are I do work in lots of IVF cases और IVF babies में भी जहाँ पे मम्मास को मिल्क बिल्कुल भी नहीं आता है. And I've been following that moms in 5-6 years, and I've seen there's a very good result. The babies are doing well, and everybody is good. So that means कि the only immunity वाला part is थोड़ा सा affected. Otherwise, the emotional part and वो अगर आप थोड़ा सा 10% extra है तो that works very well. But the breastfeeding is very important, because when you breastfeed your baby and your baby sees at you and he smiles at you or she smiles at you, that is a blessing. I think that is a blessing, or that is Yes, the yes, most important thing absolutely. what you want in your motherhood or after pregnancy, right? So Yes, breastfeed is yes. must, but sometime it is very difficult. In that case, if you are giving bottle feed once or twice, it is okay, but express milk and give, that will be the best thing. Best, of course. So I'll take few questions, Dr. Santosh first. So there was Maruk asking कि first CS के बाद normal delivery possible है with the gap of 6 years? See, I am not the right person to answer this, Gala but could yes, answer. पॉसिबल है, मतलब पहले होती थी, बट इन दिस जनरेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नो बडी वॉन्ट टू टेक रिस्क. ठीक है, तो द गायनेक, योर गायनेक विल बी द बेस्ट वन टू आंसर दिस, बट उसको भी Right. देखना And it पड़ेगा also पहले आप depends on फीडिंग. your condition. यस यस, हाउ इज योर मसल, हाउ इज योर वोम का मसल, कहीं से लीक या कहीं से रप्चर होने के Hmm. चांसेस तो नहीं है. पॉसिबल है, Exactly. पहले बहुत ज्यादा हुई है, उसको वीबैक कहते हैं, बट अब आई डोंट नो, वो तो गायनेक ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा. Right. So Maruk, you must consult with your doctor. So I think वो ही आपको ज्यादा करेंगे guide. So Jankhana Thakkar is asking कि people say breastfeeding moms should avoid spicy foods because it affects the baby and it troubles the baby. So See, ये that is सही a है या नहीं है? दैट इज अ मिथ. आई थिंक आप भी मेरे साथ ये Of course. I've ये eaten करेंगी. every single thing. My baby never suffered. सी, व्हाट इज माय थिंकिंग, जिसमें मम्मा को मजा आए, या जिसमें मम्मा को खुशी मिले, या जिसमें मम्मा स्ट्रेस फ्री हो, हैप्पी हो, मम्मा वो खाए, आई डोंट माइंड. ठीक है. अब इशू क्या आता है, ये सब बातें पहले क्यों निकली है? अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाएंगे, या बहुत ज्यादा हैवी खाएंगे, बहुत ज्यादा मैदा खाएंगे, तो यू विल फील tummy issues. You will have some tummy issue, indigestion होगा, vomiting used to time पे होगा, and you, that phase or that time जब 24 48 hours you will be sick, you will not be able to feed your baby or breastfeed your baby. इसीलिए people say कि मत खाओ मत खाओ मत खाओ, but आप हल्दी खाओगे तो मिल्क अब येलो हो जाएगा, आप तीखा खाओगे तो मिल्क तीखा हो जाएगा, या आप मीठा खाओगे तो मिल्क मीठा हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट. I तो tell my parents, if you want to eat samosa, you can eat samosa. दादी को मत बताओ, दादी नानी से छुप छुप के खाओ. But you should be happy. If you are happy, your mood is happy, milk बहुत ज्यादा आएगा. In this, I would say कि जिस जो मन आए खाओ वो सही है, but that does not mean कि हमें take it for granted लेना है, because ultimately post natal weight gain भी होता है. So watch what you eat. Eat everything, but watch what you eat. The quality food is very हाँ. important, क्योंकि आपको ultimately post natal deficiencies होगी if you are not refilling your body. सी, जैसे मैम ने कहा कि फिर ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ पिज्जा बर्गर और प्रोडक्ट या फिर डेयरी प्रोडक्ट या फिर वो डब्बे वाली चीजें खाते रहे, बिकॉज now you have to feed your baby. That means you need extra good calories, right? Yes, Not only calories, good calories, good good nutrition, calorie. good vitamins. अगर आप पिज्जा बर्गर या फिर बाहर की पानी पूरी चाट और यही सब खाते रह गए तो उसमें मेरे बेबी को कुछ नहीं मिलेगा. आई नीड यू टू ईट गुड प्रोटीन वाला फूड, गुड मल्टी न्यूट्रिशन, गुड वेजिटेबल्स, जो दादी नानी पहले 24-40 दिन खिलाती है, घी वाली चीज. आई वॉन्ट यू गाइज टू ईट. वाई? सो Yes. दैट कि मेरे बेबी को 500 कैलोरीज जो चाहिए वो तुम्हारे मिल्क से अच्छी तरह मिले. ठीक है. अगर True, आप वो true. नहीं, द एंड माय बेबी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस. सो इसीलिए दादी नानी
are very strict and they say कि eat घर का खाना, eat what we are going to give, because you will get everything what you and your baby need or what you and your baby's body need. But what I have seen कि after some time moms get so much depressed कि हमको यही खाना मिला है, इसलिए I've told them if you want to eat you can eat, but you have to eat Yes, yes, you are any of right. the मतलब things. there are families जो पोस्ट डिलीवरी खाने में सूप चावल देती है. मतलब डिलीवरी हुई है तो सूप एंड चावल खाने हैं, मतलब खाना नहीं खा सकते. I mean it's a zulm. Yes, Okay. yes. Let them eat whatever you cook at home. There is absolutely no problem. I keep telling they don't understand. So it is better that comes from you also कि वो बच्चे को harm नहीं करेगा. नहीं होता है, बिल्कुल नहीं नहीं होता है. होता है. एंड इवन बच्चा सी बच्चे को खुश रखना है तो मम्मा को खुश रखो. True, true, true. So बहुत सारे एक और क्वेश्चन है. There is a lady asking if she is facing some skin problem since 1 month called as PT on the entire body and उसकी एलर्जी बेबी को भी अफेक्ट कर रही है ब्रेस्ट फीडिंग में since 3 months. Is it possible? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल जो आप बोल रहे हैं. इट मे बी द डिजीज विच इज इन्फेक्टिंग, मतलब बेबी मदर के थ्रू डायरेक्ट लग रहा होगा. अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है या फिर ऐसा तो वी हैव नॉट सीन एनी केसेस कि मम्मी को है तो बेबी को भी हो रहा है. दैट मे बी द बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो आपको है. तो बेटर टू कंसल्ट और यू कैन जस्ट डीएम मी बेबी पिक और मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है. बट ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपको स्किन एलर्जीज या स्किन इन्फेक्शन है तो वही बेबी को हो जाएगा. हाँ, कुछ जेनेटिक या कुछ हेरिडिटरी रहेगा जो हो सकता है. बट अगर आप कह रहे हैं इन्फेक्शन है जो आपको है और बेबी को भी हो रहा है तो वो ऐसा नहीं कि मिल्क के थ्रू आया है, वो स्किन टू स्किन टच के कारण आ सकता है. Exactly. So it can be a contagious infection या यस यस bacterial यस. infection में spread हो रहा है. So you need जी to see not only pediatrician but a dermat as well. एज वेल. Right? Yes. There is one more lady, Ashu Bilim. So she is asking कि pregnancy, she is 6 months pregnant. तो प्रेगनेंसी में तीखा खाने से प्रॉब्लम होती है क्या? See, I'll answer this because I think ये थोड़ा गायनेक वाला क्वेश्चन था. बट सी लेडी, अगर आपका टमी बड़ा हुआ है, आप कुछ भी खाएंगे तो वो रिफ्लेक्स होता है लास्ट मंथ्स में, बिकॉज योर टमी इज बिग तो स्टमक दबता है. अवॉइड करें बिकॉज जब रिफ्लेक्स होता है तो वो तीखा थोड़ा सा जलेगा. तो यस, एसिडिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम. यू कैन हैव अ पेंटासिड या आपके गायनेक से आप कहेंगे तो वो आपको एक प्रिस्क्राइब कर देंगे. So there is absolutely no problem. तीखा पसंद है तो खाइए, अगर हजम नहीं हो रहा है तो for few days you can have a low spicy food, as simple as that. It will nothing harm or something with your pregnancy. I mean, see, there is a different womb. वो एक्चुअली कहते हैं ना पेट में बच्चा है, तो एक्चुअली लिटरल सेंस सम पीपल टेक इट पेट में ही बच्चा है तो खाएंगे तो डायरेक्टली जाएगा, ऐसा नहीं होता गाइस. सो देयर इज अ सेपरेट वूम, यू हैव अ सेपरेट स्टमक, तो वो इंटर रिलेटेड तो नहीं ही रहने वाला है. सो शी सेज मुझे चिल्ली खाने का बड़ा मन करता है, तो खाइए ना. सी चिली खाइए, बट अगर आपको वॉमिटिंग होता है या आपको लीगर्स होगा तो आपको बहुत इश्यूज होंगे. हाँ, exactly. So these were some of the questions that we have got, and a lot of people are enjoying the session as well. A lot of lovely comments. Thank you guys for being with us. तो इसको आगे लेते हैं. क्या particularly in Surat, do we have any lactation consultant? We have 2-3 lactation consultants तो who are कितना doing मेहनत very है good job. उनके पास जाने के लिए, या कितने रेफर करते हैं, या कितना हमारा प्रेफरेंस रहता है कि पीपल शुड गो फॉर अ लैक्टेशन कंसल्टेंट? See, इसमें क्या रहता है कि we will have to see कि see even the pediatricians do counsel या फिर जो गायनेक होते हैं या उनके जो असिस्टेंट होते हैं, they do counsel, because in this what happened कि like it is a very important part, right? When your baby is going to deliver, so breastfeeding is the important part of the body. तो उसके लिए जो काउंसलिंग पार्ट है that start from 25-26 weeks gestation. उससे पहले से we have to prepare breast. The breast size is fine, but उसके निपल कैसा है, निपल इन्वर्टेड तो नहीं है, निपल अंदर तो नहीं है, उसमें उसका लैच कैसा होगा, उसका एर्बुला कैसा होगा, वो एनाटॉमी देखना होगा. प्लस मदर को काउंसिल करना होता है कि कैसे आपको आगे जाके ब्रेस्ट फीड कराना है. द इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीड ऑन यू एंड योर बेबी. एंड जब डिलीवर्ड होता है उसके बाद लैक्टेशन कंसल्टेंट या फिर ट्रेन नर्स का काम आता है कि
पोजीशन आप मदर को कैसे दे रहे हैं, आप लैच कैसे करा रहे हैं, आप ब्रेस्ट फीड कैसे करा रहे हैं, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस 3-4 डेज में अगर सब सेट इन हो गया देन तो देयर इज नो इशू। अगर सेट इन नहीं होता है, नहीं आता है, देन वी हैव टू गो टू लैक्टेशन कंसल्टेंट। देयर आर 2-3 लैक्टेशन कंसल्टेंट्स, आई विल नॉट टेल द नेम नाउ, बट अगर किसी को चाहिए तो आई कैन डीएम यू। Yes, yes, बट absolutely. but they are doing very good job. In some cases we have seen cases जहाँ पे it is very difficult to lactate or latch the baby, उसमें भी we have got very good results, but every case is different, ठीक है। अगर आप lactation consultant के पास जा रहे हैं, इसका मतलब there is something which you are worried of, you are not able to latch. So मेरा advice रहेगा before going there, just sit down, close your eyes, find the cause, what is the reason. मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, but what is the reason? Because you are thinking so much or you are stressed so much. अगर वो स्ट्रेस कम करके अगर आप अच्छी तरह से लैच कराएंगे तो डेफिनेटली वो बेबी लेगा। एंड उसके अगर नहीं होता है तो फिर लैक्टेशन कंसल्टेंट विल आर डूइंग गुड जॉब। Great information. Gassy baby is something people are very much scared, या वो पहले से ही मन बना लेते हैं बच्चे को कॉलिक होना ही है, यू नो। तो इस तरह की बेबीज को पहला तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोलिक है, दूसरा उसकी रेमेडी, सिंपल रेमेडी कुछ है जो जिस तरीके से उन्हें हैंडल कर सकते हैं थोड़ा गैसी बेबीज को कम परेशान करे। गैसी बेबी हो गया, कॉलिक हो गया, पेट दुख रहा है, बहुत रो रहा है, व्हाट इज द रीजन इन फॉर दिस? व्हेन यू ब्रेस्टफीड योर बेबी एंड इफ द लैच इज नॉट प्रॉपर, 60% योर बेबी विल हैव मिल्क, राइट, एंड 40% योर बेबी विल हैव एयर, बिकॉज पी रहा है तो हवा लेता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एरोफेजिया। तो जब व्हेन यू बर्प योर बेबी एंड यू आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली बर्प योर बेबी, तो वो हवा निकालता नहीं है, जो हवा रहता है वो पेट में रहता है, एंड बाद में वो करता रहता है, और जब वो पेट में गैस बनता है, वो डिस्टेंड होता है, तो बच्चा रोता है, एंड दैट इज कॉल्ड गैस बेबी या कॉलिकी पेन, ठीक है। इस फेज में हमको क्या करना है? सबसे पहला, लैच प्रॉपर्ली, बर्प प्रॉपर्ली। अब हम बर्प कैसे करते हैं? सपोज दिस इज अ बेबी, वी जस्ट डू ऐसे, which is a wrong technique. You cannot do like this and remove the gas. आपको प्रॉपर्ली पैट करना पड़ेगा बेबी के जो टमी रहता है। हम जो करते हैं वो थोरैक्स पे करते हैं, which is wrong. थोरैक्स पे नहीं करना है, चलाते हैं बेसिकली ऊपर से नीचे, अब जब ऐसे पैट करेंगे तो बेबी गैस निकालेगा। देयर 2-3 मोर टेक्निक, अगर किसी को चाहिए तो दे कैन गो एट माय पेज पेरेंटिंग टिप्स सूरत, एंड वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड जब आप ऐसे करेंगे तो वो निकल जाता है। Some babies have colicky pain with no reason explained between in some babies have in evening, that is 4 to 8 के बीच में, and some have in night 12 to 4 के बीच में. There is no reason for this, but they respond to the medicine. Simple medicines are available. अगर आपको घर का उपचार करना है तो जो हिंग जो होता है, हिंग अगर आप पेट में लगाते हैं तो उससे भी गैस पास हो जाता है, because it increases the motility. But I have seen last 8 years I am practicing, I have seen only 1 or 2 baby जिसको required admission. Okay. Otherwise, yes. Otherwise, that is definitely it is treatable at home with no medicine or some colic or colic aid. And at the end, if your baby is crying, just take your baby, swaddle, and take a bike ride or a car ride, and your baby will sleep and everything will settle. ये क्यों होता है? Because sometimes your baby misses the womb. They want the experience of womb. जैसे आप बोलो डॉक्टर मेरा बेबी बहुत रो रहा है, और आप मेरे पास आए, गाड़ी में ही वो सो जाता है, and he is absolutely fine. ठीक है? तो colicky is not, see, I say colicky is colicky start when you are not able to understand your baby, why he is crying. ठीक है? Only 1 or 2 cases में ही colicky एकदम proper defined होता है, otherwise maximum time it is you are not able to understand why your baby is crying. Right. Great. This was a good information, doctor. So also tell me कि बच्चों को रिफ्लक्स होता है, और होता है तो कैसे पता चलेगा कि इन्हें रिफ्लक्स हो रहा है? See, reflux में you will have to understand the difference between spitting, vomiting and reflux. All three are different things. Spitting is what? Normally baby spit 4 to 5 times a day. That is normal. जब भी बेबी ने दूध पिया, एरोफेजिया हुआ, बर्पिंग से जो दूध निकल के, that is fine. उसके बाद क्या होगा? जैसे ही थोड़ा एयर ऊपर आएगा, उससे थोड़ा सा दूध पार्टिकल आ जाता है, that is spitting, which is normal.
स्पिटिंग के बाद क्या होता है, आपका बेबी स्पिट करेगा बट he'll be playful, playing, nothing is happening, your baby is gaining weight, and Absolutely there's no fine. issue. Vomiting, when your baby vomits out lots and Thorough, lots of blood from everything. mouth and nose once in a while, and उसके बाद he start crying, he turns blue, that is a worrisome vomiting. And उसके बाद your baby's activity is dull, या your baby is not active, right, that is a vomiting. And then आता है GERD, GERD और रिगर्ज. रिगर्ज में क्या होता है कि whether your baby is feeding or not, वो दूध थोड़ा थोड़ा मुंह में आता रहता है, और जब वो दूध मुंह में आता है तो आपका बेबी को रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, आपका बेबी का वेट गेन नहीं होता है, आपका बेबी रिकरेंट कफ कोल्ड होता है. इस सिनेरियो में you need to consult your doctor. Okay, good. So So also tell me. different thing. Sorry, ma'am. Spitting is normal. Regurg will be diagnosed by the doctor. तो आप वो छोड़ दीजिए. And vomiting once in a while is fine, but persistent होता you will have to visit your doctor. Right. So this was again point noted. Like even some things are what I also learned quite a lot today in very detail. Also tell me, जैसे हमने कोल्ड एंड कफ की बात की, लॉट ऑफ पेरेंट्स बिकॉज वो सेकेंड टाइम पेरेंट्स बनते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है पहले बारे की. सो यू नो सेल्फ मेडिकेशन थोड़ा बहुत तो हर जगह ही चलता है. सो कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन इज समथिंग कि यार इतना सर्दी, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाएं लाइन में बैठ के, यू नो काइंड ऑफ थिंग्स. टाइम नहीं है तो हम मेडिसिन दे देते, 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तब जाएंगे. हाउ सेफ इज दिस? See, अभी तो कोल्ड एंड कफ, मतलब अभी there is a season, if there are 100 patient, 110 patient are having cold and cough, 100 बच्चों को हो रहा है, 10 पेरेंट्स को हो रहा है, ठीक है. तो कोल्ड एंड कफ, we don't know कि what is the reason. You are not going to the doctor for the treatment. In case of cold and cough, what I say कि you are coming to me not for the treatment but for the diagnosis, कि whether it is just a normal cold and cough जो normal नाक और कान का है, या there is a wheeze and lungs में आगे जाके pneumonia होगा. तो सबसे पहले when you are visiting your doctor, you are not visiting for the treatment कि भाई ये cold and cough this is viral, ठीक है, it will go by itself. It may take 2 days, 3 days, and now we are seeing in many cases this is taking 10 to 14 days. अच्छा. So just keep a note कि when you are going to doctor, you are not only going for the doctor to get your baby treated fully with the one. See, this is not a surgery कि आपको बेबी डिलीवर करना है, आप डॉक्टर के पास गए, बेबी डिलीवर हो गया, राइट. दिस इज अ सर्जरी, दिस इज अ वायरल इन्फेक्शन. It has its own course. What is our motto in this is your baby is safe, your baby is not getting admitted, your baby is not getting pneumonia, your baby, this phase passes calmly, or your baby is not troubled very much, right? And ये मेडिसिन का बताया है कि I think you guys should never give medicine without consulting doctors, because what cases I have seen, I got one call, I'll tell you one incident कि doctor your medicines are not working. मैंने बोला कौन, बिकॉज आई डिड नॉट हैड हिज नंबर. मैं 6 महीने पहले आपके पास आया था, मेरे बेबी को सर्दी खांसी था, एंड उस टाइम तो मेडिसिन काम करती, अब मेरा बेबी 1 साल का हो गया, वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा है. सो आई जस्ट वांट टू टेल एवरी पेरेंट्स कि इन एडल्ट्स द डोजेस आर सेम. अगर आपको डोलो लेना है, आपको फीवर है, तो एक एडल्ट के लिए 1 डोलो या 1 पैरासिटामोल इज सेम फॉर एवरी एडल्ट, ठीक है. बट इन किड्स विद द वेट the dose change, right? अगर आपको बेबी 7 kg का है तो पर्टिकुलर डोज लगेगा, और 8 kg का है तो पर्टिकुलर डोज लगेगा. तो जब तक आप घर का उपचार कर रहे हैं यू कैन डू, बट इफ यू आर गिविंग एनी मेडिसिन, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड उसके बाद ही मेडिसिन दीजिए, बिकॉज एलोपैथी हैज इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस. जैसे आपने कुछ दवा बहुत ज्यादा दी तो आपका बेबी सो जाएगा, या कुछ दवा आपने कम दी बेस में वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है. तो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी मेडिसिन. बट आप घर का उपचार कर सकते हैं अगर माइल्ड कफ कोल्ड है. तो इम्पोर्टेंट चीज फॉर माय पेरेंट्स या जो भी हमें सुन रहे हैं कि एसी में नहीं सोना है, बेबीज को बरसात में भीगने नहीं दो, पार्टीज नहीं करो, एंड चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडीज नहीं खाओ, केक नहीं खाओ, बिकॉज वी आर सीइंग हेल लॉट ऑफ केसेस कोल्ड एंड कफ एंड बेबीज आर गेटिंग 103, 104 डिग्री फीवर, 3, 4, 5, 7, 10 days तक ये एपिसोड चलता रहता है. So there is one question on this. There is a lady asking, Khadija is asking, my baby is catching cold and cough again and again. The lady is saying, doctor, the child is catching cold and cough again and again. So I believe Khadija, एक तो चीज सर ने बता दी, check whether you are giving a lot of sweets to your child, lollipops की आदत है, and you know because they carry a lot of essence, unnecessary things जो आपके बच्चों का लंग इन्फेक्ट करता है बेसिकली.
So because our children are feeling happy with that sugar वाला effect Yes, on your yes, brain, yes. so हम दे ही देते हैं कि चलो खुश है. एंड ऑल्सो द ब्राइबिंग ऑफ द चाइल्ड, मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि लॉट ऑफ अस हैबिट, ये कर लिया ना तो ये मिलेगा. सो वी relate food as a reward or as a punishment to the children. Which is a So wrong technique. it is actually a wrong technique. तो ये कितना मतलब इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड साइकोलॉजी पर बैड इफेक्ट विद द क्या है फूड? चाइल्ड साइकोलॉजी में? सिंपल सी बात मैं आपको कहता हूँ कि आपके बेबी ने अच्छा काम किया, यू आर हैप्पी, आपने उसे गिफ्ट दे दिया. फिर आपके बेबी ने अच्छा काम किया तो आप खुश, आपने उसे गिफ्ट दे दिया. एट द एंड ऑफ द डे आपका बेबी इज नॉट वर्किंग, यू आर नॉट डूइंग दैट वर्क बिकॉज टू गेन समथिंग, बट उसे ये चाहिए कि मुझे मिठाई या मुझे चॉकलेट मिल रही है. तो एट द एंड वो सब कुछ ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कुछ भी करता तो आई शुड गेट सम रिवॉर्ड. सम टाइम रिवॉर्ड इज फाइन, सम टाइम रिवॉर्ड इज रिवॉर्डिंग, बट if you'll make this habit, then it is going to make a bad impression on my baby's mind, और आगे जाके वो Right. So again, there is the same question. I mean, this is a repeating question again and again. Lot of people are saying उनके बच्चों को बार-बार cold and cough हो रहा है. तो I think ये हमारा incomplete रह गया था. same question, my baby is having cold again. See, Ronita ji, the cold cough का ये season है, flu का season है. Every baby is having this. To avoid, I don't know how to avoid this, but पार्टीज में मत भेजिए अपने बच्चों को, बाहर मत भेजिए. अगर किसी को सर्दी खांसी है, एसी में नहीं सुलाइए. घर में किसी को सर्दी खांसी है तो उससे अलग रखिए. बट व्हाट आई थिंक कोल्ड एंड कफ तो होना ही है. कोल्ड एंड But the कफ आई season थिंक also it matters. द सीजन, इट इज अ सीजन एंड ये डेफिनेटली होने ही वाला है. तो अपने को उसका प्रिकॉशंस से ज्यादा उसको कैसे प्रिवेंट तो ठीक है, बट उसको ट्रीट करने के लिए होम रेमेडीज जो है वो करें. एसी में नहीं सुलाइए. व्हाट वी आर सीइंग कि एसी में बच्चा बहुत ज्यादा रहता है तो होता है. It's a close environment. So वो अगर बैक्टीरियाज इन्फेक्शन वायरस है तो वो अंदर ही रहेंगे. So this is one of the reason कोई है अंदर, so they share the Yes. infection. So that is one of See, the major reason in AC. I think this is the last topic I will tell because I have to go somewhere at 9. अब cold and Okay. cough होता क्यों है? Cold and cough होता क्यों है? Please understand. Running nose is a protective mechanism. Cough is a protective mechanism and fever is a protective mechanism. जब भी मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंडी, अभी ठंडी वाला या फिर ये मानसून सीजन है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है. तो ये वायरस बैक्टीरिया के लिए दिस इज वेरी फेवरिंग एनवायरमेंट. तो यहाँ पे ये रेप्लिकेट कर से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. ठीक है. अब ये कहाँ पे जाते हैं? आपके नाक में जाके वो ग्रो करते हैं. ठीक है. अब आपका नाक या आपका बॉडी क्या करता है? वहां से म्यूकस सिक्रीट करना चालू कर देता है. अब ये म्यूकस सिक्रीट क्या करता है? वो जाके उस वायरसेस को एनगल्फ करता है एंड वहां पे उसको मारने की कोशिश करता है. और वो जो म्यूकस है वो नीचे गिरता है. दैट इज रनिंग नोज. जब आपका बच्चा सोता है तो ये म्यूकस नीचे नहीं गिरता है, वो जाके गले में फंसता है और वो इरिटेट करता है और आपका बच्चा कफ करता है. दैट इज कफिंग. और ये रिएक्शन जब ये वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी के साथ फाइट करता है तो फीवर आता है. इसीलिए फीवर आता है. तो ये 3 चीज जो है आपका, ये रनिंग, कफिंग, ये जो है ये आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो होना चाहिए. ठीक है. तो कोल्ड एंड कफ तो हो गए बिकॉज ये बैक्टीरिया वायरस के लिए सीजन ही ऐसा है. तो अब हमको इसमें करना क्या है कि जैसे एनवायरमेंट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं करके, एसी से बाहर से एसी ना करें, स्विमिंग में ना जाएं, अगर ग्रुप में या किसी को सर्दी खांसी है तो उसके पास ना जाएं. जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं जैसे पॉलन हो गया या फिर कुछ फ्रूट्स हो गए, जैसे किसी को कीवी से होता है, किसी को बनाना से होता है, किसी को वाटरमेलन से होता है, वो ना खाएं. कलरिंग एजेंट जैसे मैम ने कहा एसेंस से किसी को एलर्जी होता है, वो ना करें. तो कुछ पर्टिकुलर चीज, केक ना खाए, आइसक्रीम नहीं खाए, तो ये नहीं करेंगे तो आपको ये प्रिवेंट करेगा. बट रनिंग नोज कफ तो होने ही वाला है बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. बिकॉज वायरस ग्रो होगा इस सीजन में. किसी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, उनको नहीं होता है, किसी का वीक होता है, तो वो होता है. और बच्चों में हो गई और ये होता है, इसी से हमारे बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है. राइट. So तो ये quickly तो I'll होना take ही the है. last question. So then you are free to go.
So Thank you, I thank you. wanted to ask about child allergies and especially the lactose intolerant children. I mean, how do you recognize? How should a parent know कि मेरा बच्चा lactose intolerant है? And what are the allergies that is prevalent in children? See, lactose intolerance, there are two types. पहला, since birth. इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चे को हम there is an enzyme called lactase जो प्रोटीन को तोड़ता है और इजी फॉर्म में डाइजेस्ट कराता है. अगर जिसमें Right. लैक्टेज एंजाइम नहीं रहता है तो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं. जिस बेबी को लैक्टेज डेफिशिएंसी होता है उसको स्टूल बहुत ज्यादा होता है, ब्लड इन स्टूल होता है, डायरिया होता है एंड ब्लड इन स्टूल होता है. बेबी का वेट गेन नहीं होता है, बेबी का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है. इसके लिए व्हाट वी डू, वी अवॉइड मिल्क, काउ मिल्क, कोई भी टाइप ऑफ मिल्क जिसमें लैक्टेज एंजाइम लैक्टोजन होता है वो वी अवॉइड, बिकॉज उसमें वो एंजाइम डेफिशिएंसी आपके बेबी में, राइट. तो वी गिव लैक्टोज फ्री मिल्क या लैक्टोज फ्री फॉर्मूलाज. Right. दूसरा सिनेरियो कब होता है, बिकॉज आपका गट में क्रॉनिक इन्फेक्शन था या आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन था, इसके लिए लैक्टेज एंजाइम जो है वो आपके बॉडी से निकल गया है एंड उसके वजह से आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है. तो उसमें वी गिव लैक्टेज सप्लीमेंट्स, न्यू स्माइल या कुछ ड्रॉप्स देते हैं जिससे वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है. बट कुछ बेबीज जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है वो लाइफ लॉन्ग मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते. Right. So can a child develop the allergy suddenly after 5 years of age? ऐसा क्वेश्चन है. Yes, they can, अगर बेबी के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम ड्यू टू सम रीजंस प्रोड्यूस नहीं हो हो गए हैं या फिर कोई पेट में कोई इन्फेक्शन या लूज स्टूल है तो 14-15 दिन के लिए ऐसा होता है. Right. So the last question, your tips on parents for feeding the child. किस एज से उन्हें first weaning start करना चाहिए? Till what age exclusive breastfeeding is suggested? कब उन्हें first introduce करना चाहिए? And I also want you to tell us about the water. A lot of, especially the daddies, are very much concerned बच्चे को पानी पिलाओ. See, you will get all these questions on parenting tips, Surat, but I'll solve all your doubts. सबसे पहला, breastfeeding, exclusive breastfeed for 6 months. 6 month के बाद we start weaning. Weaning is a very slow process. We start from 6 months. It goes till 12 months. पहले प्यूरी देते हैं, फिर मैच फूड देते हैं, उसके बाद फिर हम खाना देते हैं, राइट. फिर हम बीच में आता है BL, बेबी लेड वीनिंग कैसे करना है वो करते हैं, राइट. व्हाट, ये आपको डिटेल अगर चाहिए तो यू विल गेट IGTV में मेरा पूरा वीडियो है ऑन पेरेंटिंग टिप्स सूरत. उसके बाद हम वाटर कब देते हैं. सी, वाटर देने के लिए यू विल हैव टू सी, पहले 6 मंथ तो वाटर देना ही नहीं है बिकॉज 85 to 90% मिल्क मदर्स मिल्क इज वाटर. यस. उसके बाद व्हाट आई से कि 2-3 सिप्स यू गिव, बट हाउ टू वॉच फॉर इट, सी द यूरिन कलर, ठीक है. अगर यूरिन का कलर इस पूरा डार्क येलो या डार्क रेड या येलो है, दैट मीन्स योर बेबी इज डिहाइड्रेटेड, शरीर में पानी नहीं है, गिव वाटर, मोर वाटर. अगर इट इज लेमन येलो, दैट इज फाइन. इफ इट इज वाटरी, दैट मीन्स योर बेबी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, इन दैट यू कैन अवॉइड वाटर. फॉर दिस ऑल्सो देयर इज अ वीडियो ऑन माई रील और IGTV जिसमें आपको ये क्लियर कट हो जाएगा. बट वाटर, देयर इज मेनी क्वेश्चंस कि डॉक्टर मेरा बेबी दूध लेता नहीं है, हाउ शुड वी, मिल्क लेता नहीं, सॉरी वाटर लेता नहीं, हम कैसे करें. व्हाट आई डिड विद माय बेबी, व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, तो हम छोटे छोटे बॉटल रख देते थे, वी यूज्ड टू ड्रिंक, तो ही वाज लाइक डैडी व्हाट यू आर डूइंग, लेट मी डू इट. एंड उसको वैसे आदत पड़ी है, नाउ उसे पता है कि दूध पानी पीते रहना है. तो अगर आपको आदत डालनी है, अगर आपके अपने बेबी को कुछ भी सिखाना है तो पहले आप करिए, एंड योर बेबी विल स्टार्ट फॉलोइंग इट. राइट. एक और क्वेश्चन, एम आई अलाउड? यस, हाँ, यू कैन आस्क. हाँ, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स में जब हम बैठते हैं तो दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ ग्लूकोज बिस्किट, दे ऐड अ लिटिल ऑफ ईदर वाटर और अ मिल्क, बच्चे का खाना हो गया. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. आई एम अगेंस्ट इट. यस, इट शुड नॉट बी डन, इट शुड नॉट बी डन. अगर आपको नहीं, इट शुड नॉट बी डन, देयर इज नो अल्टरनेटिव. आई एम अगेंस्ट इट कंप्लीटली. मतलब मेरी बहुत बारी हो जाती है कि प्लीज थोड़ा घर का मेहनत कर लो, एक फ्रूट ही ले लो, मैश कर लो थोड़ा सा, kind of things. So this is something very much needed, because if most 90% of good females also does, who knows everything. I just want to tell that moms ki, see, that is a golden phase of 24 hour. Your baby is hungry, carry fruits, right? या कैरी फ्रैंकी, एक रोटी ले लो, उसमें घी लगा दो, चीनी डाल दो, या घी लगा दो, उसमें ग्रीन वेजिटेबल के पेस्ट लगा दो, एंड दैट टाइम योर बेबी इज हंग्री, योर बेबी विल डेफिनेटली गोइंग टू ईट. So don't waste that time
in giving this glucose ka biscuit या कुछ. Instead, just carry apple with you and give apple. Okay, It's very great. difficult to follow, but give apple. It's not difficult at all. I'll tell you, apple को grate कर लो and just on a slow stove थोड़ा सा आप उसको पका लीजिए. It will be a good puree. You can carry it also. I've done it for months. So last question, COVID immunization is not for the children. We all know that. So what are the immunizations and what age जो अभी हमें strictly parents को लगवानी है अपने बच्चों को? See, parents should take flu shots because क्या हो रहा है कि COVID अभी flu बहुत ज़्यादा मतलब I was telling everybody to take flu shot 1.5 month back because suddenly we are seeing everyone is having flu. Swine flu Yes. हो गया या normal influenza flu हो गया. And for those parents who have taken flus, उनके बेबी को अगर फ्लू हो भी रहा है तो दैट इज नॉट वेरी सीवियर काइंड ऑफ, बट जिससे नहीं लिया है उनको सर्दी खांसी एक एक महीने तक चल रही है. ठीक है, तो it is must, it is, I will not force them to take flu shot, but flu shot is the must to take because आपने फ्लू लिया है और आपको फ्लू नहीं हो रहा है और सपोज थर्ड वेव आ भी गया, ठीक है, एंड अगर सर्दी खांसी नहीं हो, फ्लू लोगे तो सर्दी खांसी होने के चांसेस कम रहेंगे, तो इट इज एडवाइजेबल टू टेक फ्लू शॉट्स. ऑलराइट. ऑल्सो अभी तो हमें परमिशन मिल गई है कि even the breastfeeding woman can take Yes, yes, the yes. COVID vaccine. COVID So vaccine. can you also tell people कि क्या उन्हें अगर मैंने वैक्सीन ली है while I breastfeed, I can pass the antibodies to my To the babies. See, babies. We have I have so many moms group with me, and usme there are so many moms who have taken breast vaccine with breastfeeding and they all are fine. There is no complications. Plus I have antenatals who have taken vaccine in the antenatal phase, and that moms and babies are also absolutely fine. There is no complication. So vaccination is a must. I think now it is not needed to be told. It is compulsory. Consider it as your responsibility and take it. And if you think it is waste of time or you don't want to take it, just call me. I'll try to change your mind, but that vaccination is must. So guys, take it as a responsibility, honestly. Yes. क्योंकि आपके पास कोई और अभी फिलहाल अपने बच्चों को देने के लिए कोविड का वैक्सीन है ही नहीं. So you are their vaccine. You are going to pass those antibodies to your child. Whether you are pregnant, you can take. Whether you are breastfeeding, you can take. And if you still have difficulty, you can pin Dr. Santosh at his page, which is Parenting Surat. So any more questions, because he's supposed to leave and I actually had a lot of questions and it was a wonderful session. We'll do round 2 because I know you have a function to attend. So we'll do round 2, of course. I just want to thank you for the wonderful time and a very informative session. Thank you very much. Yes, and anybody who still has questions, do feel free to put in the chat box, tag Dr. Santosh, or you can put on his Instagram page as well. I believe he will surely reply, or at least कुछ नहीं तो उस पे कुछ ना कुछ वीडियो आ जाएगा. I've seen him very digitally active, which I'm happy to see. And thank you so much for your time and your information. Thank you very much. Thank you. So I am just sharing this whole session. जिन्होंने नहीं देखा पूरा can see on the IGTV. Thank you. Thank you, Amanaji. Thank you. Yeah.